Yes, very good evening to everyone. Let us begin with the queries quickly. हाँ प्रणव बोलो. Pranav? So can you hear me? Yes, yes. So good evening, sir. So I have a query where we have the trade setup post opening and all. So can we, sir, I don't know if it's answered prior. Can we search on the indices basis? No, in new version it is not available, but it will be available very soon. Okay, fine. I think I have not checked. You can try So here. It is not you can working. try here in server 2 you can try with. Okay, I will check. તો in the old version માંથી કરી લેવાનું ને? હા, old version તો available છે જ. Okay. Anyone else? हाँ गजानन. Yeah, good evening, sir. Good evening. Yeah, my query is in Torrent Power daily. What is the trade setup? That is as per trending leg. अगर इसमें से अभी नहीं पूछना है तो then I will stop. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is a mix of queries. Yeah. Okay. So इसमें ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से ये सेलिंग में है अभी, क्योंकि वैलिड सेल आके जस्टिफाई भी हो गया है ऊपर, और उसके बाद में इसमें नीचे वैलिड सेल has occurred. हाँ, ये डार्क रेड है ना 10 तारीख का. ओके, ठीक है. 15 जुलाई. हाँ, and 15th July snake also has come. करेक्ट. हाँ, और नीचे आप आएंगे तो ये 5-6 बार स्टॉप एंड डू टू सेल हुआ है. ये एक्चुअली अभी किलो तक आया, किलो से आके वापस 324 तक आया, एंड 6 बार स्टॉप एंड डू टू सेल हुआ है बिलो बीडीपी. तो अभी ये सेकेंड टाइम किलो के पास आया है. इसका किलो इज 317. तो क्या अभी एज्यूम कर सकते हैं कि सेलिंग करेंगे तो किलो ट्रेड कर लेगा 317? No, we are doing something wrong. अच्छा, okay. I just want to understand this. You are talking about trending leg also, as well as reversal, buy sell also, and RAR also. आप तीनों देखो, इसके अलावा भी और देखेंगे, सब देखो. But tell me one house, one strategy which you want to track. नहीं, इसमें तो स्टॉप एंड डू टू सेल इन एक्शन वाला स्ट्रेटेजी होगा ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से. व्हाट आई विल प्रपोज, क्योंकि आरएआर के हिसाब से तो नहीं होगा, ये ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से. तो आरएआर छोड़ दे. हाँ, आरएआर छोड़ दीजिए. नहीं बात करूंगा मैं. नहीं करो, आरएआर करो, लेकिन पहले हमको जो घर में जो करना है, डिसाइड one trading strategy. Then you add as many factors as you want, and if it is rewarding, if it is favorable, you accept it, otherwise ignore it. But by taking the decision, don't add everything what you know. ओके. तो इसमें क्या व्यू होना चाहिए फिर सर? सबसे पहली बात, अगर if you can relate this, 15th July snake has come, 15th July follow-up selling has come, and their double star is there. Yes. Which we are insisting nowadays, so every time. Yes. This 15.5 is never traded on lower side. No, not yet. That is why it is not falling further, and that is the reason. Until FC 100% is not traded, it is bouncing back. Yes. Up to 324.55, 324.55, 324.55 every day. Yes. Only to come down further. Okay. But prices will continue to fall further when 315.5 trades on
lower side, True. because according to trending leg, it is in valid sell. Yes. Continue when selling has come on 15th July. Yes. Selling has come by, it missed to trade FC 100%. So True. distribution is going on up to 324 every day. Yes. And all these things we'll have to learn with practice only. It cannot be formulated. It cannot be computerized now. Beyond this. Understood. Now, let us come to reversal buy sell. Huh. Now that has been given to you. It is available Yes. for everyone. Hmm. So according to reversal buy sell also, it is in selling only. Yes. On 15th July, drifting sell 327.75 is traded on lower side at 320. Right? Yes. So any rise in price is a Retracement. Pullback. So it is in selling only. What do you want to ask now in this? No, okay, that it is in selling, and once because okay, I was mixing it with RAR. Kilo के पास में recent resistance is what? 322. 322. It is coming. See 324, 324, 324, 324. True. Yeah. So we could have sold with that stop loss itself. I have sold today with the stop loss of 322. Only when 314 will trade below. Yeah. Yes, 312.60. 312. Okay. And अगर कल इसने 328 ट्रेड कर लिया, हाँ. CCCB traded on higher side, leader will come. Yes. Whatever is there, it should be sold at 325, square off at 315. Sell at 325, square off at 315. Square off 315. Correct. This is all power. This is all power of what? Why it is not falling? Though according to trending leg, it is sell. Though snake has come, though stop and issue sell in action is there. FC 100, 315. Yeah. So my point was, it has come to 315 second time. So अभी assume कर सकते हैं क्या ये second time इसको trade कर लेगा? That was the query. क्या मालूम ये यहाँ ऐसे नहीं हो सकती. Here 16th July it has come once. हाँ. Then again and now 324 it has come here second time. Yeah. Then after 324 again it has come third time. Yes. Oh, many times. So those days हम ऐसे सोचा कि ट्रेड कर लेगा. You know, for 5 times it is 5th approach. दिख रहा है कि कल कर लेगा, क्योंकि आज हमने बात की है तो कल कर लेगा, वो बात अलग है. दिख रहा है. Another observation. It has come 4 times, 5 times continuously in between 325 and 315. Yeah. Another observation is okay. नहीं, another observation add मत करो, क्योंकि already जो observation है that itself is not clear. नहीं, RMSL हायर बार ओपन होके आउट ऑफ 6 वो स्टॉप एंड वेस्ट टू सेल हो रहा है. More analysis is a paralysis here. ओके. बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल वे में, और कुछ टॉपिक्स मत करो ना. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है. या anyone else? See, it was a bit difficult today to organize the webinar. फिर भी मैंने कहा कि चलो किसी की क्वेरी हो and he should not be stuck with the queries, इसलिए वेबिनार रखा है. प्लीज पूछ लो ना जो भी पूछना है. रोहित बोलो. रोहित. Hello. Yes, sir. Hello. Sir, UBL trend selling and trending, but today
it did stop and reverse to buy in Trade weekly. setup in weekly, no? Weekly, Setup yes. is- Okay. Which setup? Selling in trending. सर लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग से निकल गया रहेगा क्योंकि एसएनआर टू बाय हुआ है. Which script? यूबीएल. सर ये एसएनआर टू बाय हो गया बट बिलो डब्ल्यूडीपी हुआ. If an RM is a low open retraced and then drifting cell traded, then drifting cell traded, 100% also traded, and then stopping is to buying FC below WDP Yes. 975 and high greater than FC 23.6 आ गया. Yes. So here journey is complete. Exit rate is Yes. coming up to 14.6% TVHS. And stop and to buy below WDP has no meaning. And, No meaning. Yes. was nothing but retracement. And जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे आपको भी बात करना सीखना है. हाँ हाँ सर. And आपको आता है but I'm just doing for everyone. So here it is in selling judgment only. And ignore the stop and use to buying FC below WDP. Consider this as a retracement. Interesting. Okay. Okay. तो Okay. यहाँ पे और FC बाइंग का जजमेंट हो तो भी it is difficult to trade out of FC 14.6% TVHS on first attempt. Selling के judgment में to below WDP. I'm just emphasizing on below WDP. It is very difficult to trade out of FC 14.6%. So there is two strategy. एक तो यही शॉप लॉस से बेच देना चाहिए. दूसरा वहां से लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला तो स्क्वायर ऑफ करो. शॉर्ट इनिशिएट करो. So तो अभी डेली में क्या हो गया आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट हैपेंड आफ्टर एसएनआर टू बाय बिलो डब्ल्यूडीपी it did SNR to sell below BDP and later in the day it did SNR to buy again below WDP only. तो सब कुछ बिलो बिलो ही है ना. हाँ बिलो ही है सर. हाँ प्लान ही नहीं खोल रहा हूँ. पूरा चारों दिन बिलो बिलो ही है. हाँ सर. हाँ उल्टा ऐसे सोचो कि ये 27 जुलाई का बीडीपी का डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लिया तो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन विल कम. ये इस दिन का डब्ल्यूडीपी लोअर से ट्रेड कर लिया तो रिवर्सल सेल विल कम. 30 जुलाई का डब्ल्यूडीपी लोअर से ट्रेड कर लिया तो रिवर्सल सेल विल कम. ये सब में जाके देख लो कि भाई कितने कितने का मार्जिन है और कल ये ट्रेड कर लेगा. ऐसा सोचो. ओके 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 सर. गॉट इट सर. ओके थैंक यू सर. Yes. Also project it will manage to again stop and use to sell होके ये जो 955.60 जो है जहाँ से stop and use to buy हुआ था 909 से ये भी ट्रेड कर ले. ऐसा सोचना चाहिए. ओके 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 सर. ऐसा सोचना चाहिए. होगा नहीं होगा वो नहीं मालूम है बट सोच तो ऐसी रखती है 909 भी तोड़ देगा. यस. ओके ओके सर. इनिशिएट कर पाएंगे अच्छे से. गॉट इट सर. जिस डायरेक्शन में बाजार है ना उस डायरेक्शन का जो मंदिर की ध्वजा है टारगेट है जर्नी है उसको देख लिया करो एक बार. Anyone else? Anyone else?
हाँ तेजस बोलो। हाँ सर, हैप्पी इवनिंग सर। सर मेरी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेरी है कि वीकली के फ्रेम्ड बाइंग सेटअप में एक बार अगर RC 100 तक की जर्नी कंप्लीट हो जाती है और वापस वो रिट्रेस होता है जब भी, तो सेकेंड टाइम हम लोग उसको रिट्रेसमेंट में लेके, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तभी लेके वापस Come ये again, RC 100। let हाँ us take up सर, with case studies. ओके सर, एक तो है अपना अपना सॉरी HDFC लाइफ। 2-3 स्टॉक्स है जो ये कैटेगरी में फॉल होते हैं अभी। कौन सी दो? HDFC लाइफ वीकली बाइंग सेटअप में होगा। हाँ, बाइंग सेटअप में ही आएगा, अपना बाइंग इन ट्रेंडिंग में ही आएगा। रीजनल HDFC लाइफ, हाँ ये है। हाँ हाँ बोलो क्या हाँ, करिए इसमें। तो इसमें एक बार RC 100 तक की वीकली जर्नी उसकी कंप्लीट हो गई थी, बाद में ये रिट्रेस हुआ है और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे आज मैंने उसको लिया था नियर RC 14.6 ट्रेडेड वैल्यू लोअर साइड के बाजू में। अभी लोअर टाइम फ्रेम में उसको वापस सपोर्ट मिला है आज, मतलब रीबिगिन टू बाय हुआ था लोअर टाइम फ्रेम में। तो अभी इसकी जर्नी सर कहाँ तक हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो RC 100 पे प्रॉफिट बुक किया है हमने। RC 100% तक आकर, मतलब उसके 50 पैसे नीचे से घूम गया है, लेकिन वहां support, पे बुक किया था। हाँ RC 14.6 is support। हाँ, और सर आज बराबर मैंने 626 में वापस उसको परचेस किया है और बाय किया है, और वो लोअर टाइम फ्रेम में वापस उसके बाद रीबिगिन टू बाय भी हो गया था। ठीक है, रीबिगिन टू बाय इंटर चैनल जोन में हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द क्वेरी? क्वेरी ये है कि अगर ये वापस जर्नी अगर ऊपर की तरफ करेगा तो कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट RC 100 के बाद हम दूसरा कोई लेवल है जो हम ट्रैक कर सके, या वापस? है ना, हाँ इंडिया जर्नी का 670 का टारगेट है ना। ओके ओके, अच्छा वो देखना है। और कल फ्राइडे है, और डेली ओके में अगर सपोर्ट मिल जाता है तो 70 तो आ ही जाएगा। ओके सर, तो मतलब वापस एक बार RC 100 वीकली ट्रेड करके वापस नीचे आता है तो हम लोग वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं ना सर, लोअर टाइम फ्रेम में करना ही या? करना ही हाँ, करना चाहिए रिट्रेसमेंट ना। पे, सेकंड टाइम रिट्रेसमेंट अगर आपने पहली जर्नी में पार्टिसिपेट किया है और हाँ उतना मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के पास मिलता हो तो लेना हाँ, चाहिए। एक बात ध्यान रखो, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो ही बढ़ेगा। लेकिन सर मैं सारे ट्रेड है ना लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट की वेट नहीं करता हूँ, सारे के सारे ट्रेड मैं रिट्रेसमेंट के बाजू में ही लेता हूँ, तो मोस्ट ऑफ देम तो चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते तो स्टॉप लॉस कम रहता है, तो ये मुझे थोड़ा मतलब जम गया है। नहीं करना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन अच्छा WDP ग्रेटर देन BDP है ना, इसके लिए चल जाता है। आपने एक, आपको सैटरडे संडे में होमवर्क देता हूँ, फिर मंडे आप शेयर करना। आपने जितने हम्म भी रिट्रेसमेंट भी लिए हैं हम्म without checking whether it trades with lower time support with lower time frame, in हम्म support in lower time frame, all those already must be trading with greater than BDP or greater than WDP, इसके लिए चल गए होंगे। कहीं एक भी ओके बार अगर BDP आ गया ना लो टाइम हम्म और रिट्रेसमेंट में आप ले लोगे ना, तो हम्म डेफिनेटली, सॉरी नॉट यूज द वर्ड डेफिनेटली, बट वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस 10 में से 7 बार 8 बार है। सॉरी सर, वापस प्लीज समझाइए ना, आपने क्या बोला अभी, क्या आ गया तो? आपके जितने भी ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं हाँ इस तरह से रिट्रेसमेंट के पास आपने लिया, यू नॉट वेटेड फॉर it to trade with support in lower time frame. राइट All those trades must be successful because during the week
at least once in lower time frame, it must have traded greater than WTP or greater than BDP. हाँ सर, मैं सारे ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन एफसी वाले ही लेता हूँ, हाँ, तब मतलब ठीक है। वो अगर विच इज आपने ग्रेटर देन जो लोग रिट्रेसमेंट के नजदीक लेते हैं, बट लोअर टाइम फ्रेम, if it is traded at least once lower than WTP or lower than BDP, stop and use to buy below WTP और stop and use to sell below BDP. below अगर दिख गया तो सबके स्टॉप लॉस ट्रेड होने के चांसेस है 10 में से 8 ओके इसमें 10 में से 9 बार है ना, ट्रेड फ्रूटफुल होगा। राइट सर। और एक क्वेरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, सिमिलर सेटअप है लेकिन उसमें इसमें आज रेजिस्टेंस उसको मिला है तो शायद इसमें से निकल गया रहेगा। सर नहीं दिख रहा है इसमें। बाइंग एंड ट्रेडिंग में वो शुरू से है ना, बाइंग एंड ट्रेडिंग में से निकल गया था क्योंकि वो लास्ट डे टू सेल हुआ था ना, इसके लिए। सर लेकिन उसमें एक बार तो जर्नी हमने ली है, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अबो WTP इन लोअर टाइम फ्रेम पहले ही दिन हुआ था, फर्स्ट डे ही हुआ था तभी। हाँ डेली का प्लान है। हाँ तो सर ये फर्स्ट डे ही मंडे को ही स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन लोअर टाइम फ्रेम अबो WTP हुआ था आफ्टर गिविंग फ्रेश रेजिस्टेंस, तो तभी हमने एक बार उसको बाय करके RC100 वीकली पे वो जर्नी तो एक बार ले ली है। वापिस ये सेम जैसे ये बजाज लाइफ है, HDFC लाइफ है, वैसे वापिस वो आज लोअर टाइम सॉरी RC 14.6 वीकली पे ट्रेडेड वैल्यू लोअर साइड पे बाजू में 600 में मिला था तो मैंने लिया, तो उसने ये 599.30 उसने ट्रेड किया, ठीक है, लेकिन मैंने उसको लोअर टाइम फ्रेम का नीचे का एक जो लेवल है कृष्णा पे 593 का, वो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था उसका। तो इसमें सर इसमें मेरी एक ही क्वेरी है सर कि जो फर्स्ट डे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अबो WTP हुआ उसका स्टॉप लॉस 587 था, तो वो ओरिजिनल स्टॉप लॉस होना चाहिए या वीकली का जो मैंने सेकंड टाइम रिट्रेसमेंट में लिया तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए? देखिए इसमें भी ग्रेटर देन BDP ग्रेटर देन WTP है, उसके हाँ सर बावजूद वही ट्रेड इसने लेता हूँ मैं। 14.6% जो है वो लोअर साइड ट्रेड कर लिया। Now Right. this will be not monthly, weekly. नहीं this sorry ये weekly and lower time frame greater than BDP greater than WTP सब है, but in spite of that in weekly time frame it has managed to trade। ये मंथली का प्लान क्यों खुल रहा है? This is weekly and this is daily, right? In spite of Yes, greater than BDP, it has managed to trade RC 14.6% TVLS, right? Now, right. वहाँ पे अपने 599.30 का नेक्स्ट लेवल, there is two strategy. One is 599.30 next level. नेक्स्ट In लेवल daily डेली time. पे डेली में लिया है, या 593 था लोअर बैंड था। Follow up resistance and that follow up resistance will keep extending. You should be prepared for that. Second Okay. is when you are there during market hours और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 104 में you can know actually it is falling, if we can project that. Here we can try at FC 23.6 or FC 38.2 because stop and used to sell above BDP.
and falling from rising channel to FC 38.2%. On first attempt, it is not easy to trade FC 38.2 for you because you have Okay. been doing this. तो 584 के Yes. stop loss से high hold करनी पड़ेगी अभी. For others, when it approaches 592, 589, 587, I wish initiate the trade only when trades with support in lower time frame. Lower time. Okay. Okay. Projecting RC 38.2% journey. ओके, तो ये सर एक जो क्वेरी है 27th का स्टॉप लॉस टू बाय है, उसका स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए 587 का. 27 जुलाई को स्टॉप एंड यूज टू सीरीज अबव बीडीपी. यस. तो 590 प्रोजेक्टेड था, वहां पे आवे तो लेना था डब्ल्यूडीपी के पास. हियर आल्सो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी, सो दैट इज आल्सो सेज 592. तो आपने जब आज वीकली में when you are following this greater than WTP greater than BDP, but I think you are following very nicely greater than WTP. Yes, you are yes. not अभी focused on greater than. या मैंने अभी ग्रेटर देन बीडीपी मुझे अभी समझ में नहीं आया है. WTP के पास वो मिलता है 592 के पास, and FC 23.6 of weekly also happens to be 592. So we could have waited till 592. सर वापस समझाइए ना, 592 कैसे आपने देखा? Whenever stop and use to sell above BDP is there, reversal by traders by when approaches WDP, projecting it will manage to trade 604. Okay. Whenever stop and use to sell above BDP is there, weekly is also in buy, daily also is in buy. We can buy nearer to WDP 593.85. वो मतलब वो दिन का WDP के पास, वो दिन के WDP के पास हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं बाइंग, बराबर ना सर? प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वहां पे लेना भी है. प्रोजेक्टिंग 680 will be traded on higher side, which is known as reversal buy. तो सर Now एक मिनट, 28th July also. तो एक मिनट सर, वही दिन का प्लान खोलिए ना, तो उसमें स्टॉप लॉस हम FC 100 का रखेंगे ना 586.75. तो कह रहा हूँ, well, absolute level समझ लो 593.85. हाँ. Okay. Now I am coming to 28th July. Here also stop and use to sell above BDP है. So we can buy here at 592.55. Projecting it will manage to trade 630.25. But not in this week, anytime in coming days. Now stop loss will be 592.55. Suppose tomorrow 592.55 comes. It comes in between FC 38.2 and 67.8. Yes. So my stop loss will be 586. But since it is 61.8%, 578. and I'll keep 178 half. तो इस तरह से कितना नीचे आता है देख के रिवर्सल बाय ट्रेडर, हाँ, रिवर्सल बाय ट्रेडर. राइट. बहुत नीचे. तो might as well attempt to buy near 586, 584, no sir, so that stop loss will be nearer. For weekly time frame trader it is 584. For reversal by trader it is 578. Okay, whichever is lower. Not whichever is lower. You are a weekly time frame trader, no? So your stop loss is 584 only. For reversal by trader, 592.50 extend every day. Okay. 592, so one day it will become stop loss 600 also. But for tomorrow it is 578. चलो छोड़ो, दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो. मिक्स हो जाएगा सर. हाँ, वही कंफ्यूजन है सर. मत करो. मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडी, जैसे आपने स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी लिया है, इसको मास्टरी किया है, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी होना, तब try to buy nearer to the WDP 592 and not at weekly RC 14.6%, 603. बस इतना ही कह रहा हूँ.
बस बस ओके, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। अभी मैंने बाय किया है, कल मुझे अगर एग्जिट मिलता है तो मैं मॉर्निंग में करके वापस नीचे खड़ा रह सकता हूँ। यस यस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर खाली एक वस्तू पूछी थी, जे हिंद सिंबल वाला जो है आपका स्टॉप एंड डिस्कशन है, इसमें सिग्निफिकेंस सॉरी, तो उसका सिग्निफिकेंस जो है वो वही टाइम पीरियड के लिए रहता है, राइट? अगले अगले टाइम पीरियड में उसको देखना नहीं है, फिर जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं वैसे। आई हैव नॉट अंडरस्टूड। ये जो हिंद सिंबल वाला स्टॉप एंड होता है सर, नॉट गेटिंग आपका वॉइस सर वॉइस नहीं आ रहा? अब बोलो, बराबर आ रहा है, बोलो। हाँ सर, ये जो स्टॉप एंड डिवर्स हैंड सिंबल वाला होता है, बाय या Hand सेल symbol. व्हाटएवर, हाँ, तो उसका सिग्निफिकेंस जो है वो वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है, राइट? यस यस यस। राइट, और अगले अगले टाइम पीरियड में फिर उसको नहीं देखना है, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं वैसे उसको ट्रीट करना है। बराबर। और सर अभी दूसरी एक बात करता हूँ, ये जितने अभी मैंने क्वेरीज सुने हैं, सारे क्वेरीज आके वो बिलो डब्ल्यूडीपी पे आके या बिलो बीडीपी के नीचे आके वहीं पर आके रुक जाते हैं, तो आई थिंक अभी वो आप लेना चाहिए, बराबर। क्योंकि वो हम सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं सर अभी। क्या माने कंफ्यूजन है, कंफ्यूज बोलो। नहीं हो रहे, कंफ्यूजन नहीं है सर, वहां पर ट्रेड जाके अटक रहा है। निकाल देता हूँ, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं निकाल देता हूँ। ना ना ना, कंफ्यूजन नहीं सर, और एक चीज सीखने को नहीं है, उसके लिए वहां जाके वो ट्रेड रुक जाता है, बिलो डब्ल्यूडीपी वाला या बिलो बीडीपी वाला, तो वो अभी ये सिखाइए। ठीक है, कुछ नहीं है, ग्रेटर ग्रेटर है तो भाई करेंगे, बिलो बिलो है तो निकल जाएंगे। नहीं सर, वो तो समझ में आ गया, वो क्लियर है, अभी आपने तेजी से को समझाया तो एकदम क्लियर है वो, लेकिन अभी ये बिलो वाला है वो अभी आप आपसे सीखना चाहते हैं बस। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो बिलो वाला बाइंग में नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सिखाता हूँ। अच्छा नहीं, हाँ, बिना वो नहीं 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 नहीं, ऐसा एक साथ में सब कुछ नहीं यार। ओके ओके सर, व्हेनेवर यू फील ठीक टाइम ही तो सिखाइएगा। मिठाई પીરસવી હોય ને, મિઠાઈ જમવા આવ્યા હોય ને મિઠાઈ પીરસવી, એ થાળીમાં જે મિઠાઈ આપી છે એ ખાલી થાય પછી એકાદ રોટલી બીજી ખાય, પછી છે ને પીરસવી જોઈએ બીજી મિઠાઈ, એક યસ સાથે મિઠાઈ અંડરસ્ટુડ અંડરસ્ટુડ, અને એવી રીતે પીરસાય કે તમારે ખબર પડે કે મિઠાઈ આપી દીધી. यस यस अंडरस्टूड, परफेक्टली अंडरस्टूड, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। दीपेन बोलो। Hello. यस दीपेन। Can you hear me, sir? यस प्लीज। Good evening, sir. गुड इवनिंग। So my query is like higher time frame. I had messaged you in Dr. Reddy. So my query is, I am holding Dr. Reddy. Once it approached 100%, it never traded it. I exited over there, Which and plan? yearly, Which year? current year. Okay, we approach RC 100% and you squared off all the buying position. Yeah, I क्यों? squared over there. सर क्यों? हायर टाइम फ्रेम में 100% पे 90% रुकता है और वो रिट्रेस तो होता है, बट एज क्योंकि वो जर्नी भी बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से मैंने उधर एग्जिट किया था और आई वेटेड फॉर द रिट्रेसमेंट जो कि आया,
एंड वहां पे मैंने जैसे मेरे को लोअर टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट मिला, तो वहां पे इनिशिएट किया है. माय क्वेरी वाज दैट कि वंस इट हैज not traded 100% and retrace from, then it is a maximum retracement. And उसके बाद जब भी वो 100% तोड़ता है, तो what can be the projected target? First of all, it is in bull's house. Yeah. तो आरसी 100% पे ईयरली टाइम फ्रेम है, निकलना चाहिए, बराबर है, मानता हूँ. बट एक बाइंग का घर हो और उसमें भी इस तरह से वैलिड सेल होके डार्क रेड तो हुआ ही नहीं, तो मतलब टूट के आरसी 100% आ रहा था, करेक्ट. तो अपने को एकदम से 100% में निकलने की जरूरत नहीं थी. ओके. डार्क रेड हो, सेलिंग एक बार बेयर के घर में से बुल के घर में आया हो तो बात अलग है. ईयरली टाइम फ्रेम ओके. कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा समझ लो इसको, और आप बहुत पुराने पार्टिसिपेंट हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि बुल के घर में ही है. ट्रू. रेड हुआ बट डार्क रेड नहीं हुआ, मतलब इट वाज ऑल करेक्शन सेल, एंड फ्रॉम देयर इट इज राइजिंग अगेन एंड अप्रोचिंग आरसी 100%. तो बुल के घर में अगर आरसी 100% आता है, वो भी टूट के आता है, सीधा सीधा आता है, वी कैन रिस्पेक्ट. बट टूट के जब आरसी 100% आता है तो उसको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है. ओके. नाउ सेकेंडली, RC 100% is traded Yeah. and it is retraced also. Yeah. And after retracing, again it is going up. So hold it, no, for the whole year. आई एम होल्डिंग इट सर. मैं सोच रहा, मतलब मेरा क्वेरी ये था कि उसका प्रोजेक्टेड टारगेट कुछ सोच सकते हैं कि सिर्फ होल्ड ही करना है? कहाँ से रिट्रेस हुआ? मैक्सिमम रिट्रेसमेंट उसका 61 TVHS से रिट्रेस हुआ. नहीं ना, ये जो आफ्टर रिट्रेसमेंट 100%. कहाँ से आया? RC 127.2 से आया? नहीं. हाँ हाँ. नहीं नहीं. एक सेकंड आराम से. RC 100% ट्रेडेड. हाँ हाँ. करेक्ट करेक्ट 61.8 सपोर्ट. करेक्ट 127.2 climbing by. करेक्ट. Before trading RC 127.2, it is traded with retracement. यस That to maximum retracement. यस. मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, कहां से रिट्रेस हुआ? 100% ट्रेड होके वापस नीचे आके उसने रिट्रेसमेंट किया सर. कहां से रिट्रेस हुआ? RC 127.2 127 से रिट्रेस हुआ. यस यस यस. तो कम से कम उसका यस. नेक्स्ट लेवल, एक लेवल तो ऊपर आएगा. 161.8, 5100. सर मेरा वही है कि 5100 तक रुकना है, उसके ट्रेड तक रुकना है या रुकना ही उसको. ओके ओके ओके. हाँ. रुकना ही है, क्योंकि जहां से रिट्रेस हुआ वहां से पूरा रिट्रेस होके वापस जब बढ़ रहा है, तो उसका एक लेवल, सिर्फ एक लेवल तो और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओके सर. ट्रू ट्रू. पावर ऑफ रिट्रेसमेंट, कि जहां से रिट्रेस हुआ उसका नेक्स्ट लेवल तो मिनिमम आएगा. आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम. यस. यस सर. गॉट इट. ठीक है ना? यस सर. एक और बात, यहाँ पे भी आप देखो, डॉक्टर रेड्डी में बुल के घर में ही था. या FC 100% ड्रिफ्टिंग सेल था. यस. नहीं ट्रेड किया, नहीं. डार्क रेड नहीं हुआ. हम्म. एंड सी द पावर ऑफ FC 100%. वहीं से स्टॉप एंड यूज टू बाय होके कहां से कहां आ गया. यस सर. ठीक है ना? ऐसे देखा करो, जब इतनी लार्जर टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, इतना बढ़िया टेम्परामेंट है यस सर. ईयरली यस टाइम सर. ट्रेड करने का, तो ये भी टेम्परामेंट डेवलप करो कि भाई कुछ 2 4 5 साल के प्लान देख लिया करो. तो एक और दिख रहा है कि 4386 जहां से बढ़ना बंद हुआ था वहां से टूटना चालू हुआ, और वही यस अभी सर. तो ट्रेड
It is just new round of buying is just in yearly time frame. यस सर. तो आने वाले 2-3 साल में ये दोनों का डिफरेंस का उसका 161.8 तो आएगा ना. मैं ओके. ज्यादा इस बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपने सीखा हुआ है. यस सर. सर सीखा हुआ है, पर इतना बड़ा कभी टारगेट ऐसा मैं माइंड सेट रह के कभी ऐसा सोचा नहीं है. तो लार्जर टाइम फ्रेम कर रहे हो तो लार्जर सोचो. ओके. सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने से नहीं होगा, वो टेम्परामेंट भी लार्जर रखना पड़ेगा. रखना चाहिए, रख सकते हैं. ऐसा सीधे इतना तो बोल सकते हैं कि 4386 अभी ट्रेड किया है तो बाजार तो नया बढ़ना चालू हुआ है. 4386 अभी ट्रेड करेगा ये. जब अगर समझो कि ये साल में 5114 ट्रेड कर लिया, अगर कर लिया तो नेक्स्ट ईयर वो आईसीएफसी खुलेगा. 2-3 महीने में धीरे धीरे आईसीएफसी खुलेगा, फिर वहां से वापस बढ़ेगा. करेक्ट है. यस सर. यस सर. यस सर. गॉट इट. ठीक है. दीपेन के लिए मैंने लार्जर टाइम फ्रेम की बात कर ली, बिकॉज आई नो ही इज डूइंग इट, बट हमको बाकी सबको नहीं जाना है इसमें, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हुई समझाने के लिए. मैंने बहुत कोशिश की थी आज से 3 साल पहले, और मैं नहीं कर पाया. तो यू नो लेट अस नॉट कंटिन्यू जो सक्सेसफुल नहीं हुआ. सिस्टम में वर्क, इट शुड बी आल्सो यू नो ट्रेडेबल. हाँ भावना बोलो. हाँ सर, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. सर कुछ एक बात बोलनी थी आपको. मुझे? एक रेफरेंस. हाँ आपको सर. हाँ बोलिए. और एक रेफरेंस के साथ बोलनी थी. वो दिन आप संडे को जब भी आपने वेबिनार लिया और उसके बाद भी वेबिनार लिया, तो आप एक चीज बोल रहे थे कि जितना मैं दे रहा हूँ और जितना मैं सिखा रहा हूँ और जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही काफी है. आज भी किसी ने आपको बोला कि स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल बिलो बीडीपी हो गया, तो आप वो भी सिखाइए, तो उसमें कैसा बाइंग करने का. तो यू इमीडिएटली सेड कि ये सब कुछ मुझे अभी नहीं सिखाना है. एक स्टोरी थी, वो मुझे बोलनी थी. क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे सर? बोलो ना, आपको कौन रोक सकता है. थैंक यू सर. महाभारत की एक स्टोरी है जहाँ पे कृष्ण भगवान है. हम लोग कृष्णा वे हमेशा करते हैं. तो कृष्ण भगवान है, उनके गुरु है सांदीपनी ऋषि, जिनके आश्रम में जाके उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी. पूरी शिक्षा सांदीपनी ऋषि के पास. पूरी उनकी शिक्षा खत्म हो जाती है. उसके बाद वो अपने गुरु को पूछते हैं कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं. तो गुरु उनको बोलते हैं कि मेरा बेटा है सांदीपन, जिसको जरासंग राक्षस है उठा के लेके गया है, तो तू उसको छुड़ा के लेके आ. मीन्स दैट विल बी माई गुरु दक्षिणा. तो कृष्ण भगवान जाते हैं और संदीपन को छुड़ा के जरासंग राक्षस से लेके आते हैं. और फिर बहुत खुश हो जाते हैं. संदीपनी ऋषि, उनकी जो वाइफ होती है गुरु माँ, वो बहुत खुश हो जाती है और फिर उनको बोलते हैं कि तू मेरे से कोई भी एक वर मांग, तुझे जो भी चाहिए मीन्स दैट तू मेरे से प्लीज मांग ले. और उस वक्त कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि मुझे ये वर चाहिए कि मातृ हस्ते न भोजना. जब भी मैं खाना खाऊं तो हमेशा माँ के हाथ से खाना खाऊं. इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि देवकी या यशोदा उनके पीछे पीछे घूम के एवरीडे उनको खाना खिलाएगी, जो पॉसिबल नहीं है. देवकी को तो कृष्ण भगवान को छोड़ना पड़ा था और यशोदा को भी कुछ समय के बाद कृष्ण भगवान ने गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए थे. ये सब स्टोरीज है. इसका बोलने का मतलब ये है, कृष्ण भगवान ने शायद इसीलिए ऐसा बोला रहेगा कि माँ जब भी अपने बच्चे को खाना खिलाती है, माँ जब भी अपने बच्चे को खाना देती है, वो खाना पेट भरने के लिए होता है. गुरु जब भी अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी देता है, तो शायद उसका दिमाग पूरा करने के लिए या उसकी शिक्षा में जो भी है अभिवृद्धि हो, या उसे पता होता है कि मुझे क्या देना है. मीन्स वो इंटेंशंस जो होते हैं माँ के होते हैं या वो गुरु के होते हैं, वो उसको एकदम बहुत अच्छे से पता है. एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि बच्चे को बहुत बिरयानी के लिए बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं ना, मीन्स रोता है माँ के पास, और माँ उसे देती नहीं. उसका रीजन होता है कि उसको लूज मोशंस हो गया. माँ को पता है कि मुझे उसको बिरयानी नहीं देनी, बिरयानी दूंगी तो उसका लूज मोशंस और भी बड़ा ज्यादा हो जाएगा. नहीं, उसका इंटेंशन जो होता है, उसका एक्शन एकदम राइट होता है, बिकॉज उसका इंटेंशन ऐसा होता है कि उसका पेट और भी ना बिगड़ जाए. इससे मुझे यही बोलना था कि मुझे ऐसा लगता है सर कि
आप जो बोलते हो कि जो जितना भी मैं देता हूँ या जितना भी मैं देने का कोशिश करता हूँ या जो भी मैं देता हूँ आप उतना ही लो और उससे ज्यादा नहीं लो। और वो रेफरेंस में एक चीज मुझे बोलना है सर, आज आपने एक मैसेज भेजा था बीपीसीएल का, पैटर्न फेलियर इज मोर रिवॉर्डिंग देन पैटर्न इटसेल्फ का। और मैं थोड़ा वो थोड़ा सुन के मैं डिस्टर्ब हो गई थी सर। आज वो चालू मार्केट में आपने भेजा था बीपीसीएल वीकली का नॉक इन आरसी वगैरह था, पूरा रिट्रेस हो गया, रिट्रेस होने के बाद अपर बैंड ट्रेड करके वापस रिट्रेस हो गया और एफआरएआर भी वो हो गया। डेली में स्टॉप एंड लीवर्स टू सेल अबाउट बीडीपी हो गया और वो डब्ल्यूडीपी के पास मिल रहा था और कल उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया सर 49 में, मींस 52 में लिया था 49 में, ठीक है स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मेरा सिस्टम है, स्टॉप लॉस रखे बिना मुझे काम नहीं करना है और मींस पूरा बाइंग का सिस्टम है, मैंने उसको बाय किया था तो स्टॉप लॉस मार्केट तो मेरा नहीं है तो होगा स्टॉप लॉस हिट, उसका कोई भी बुरा नहीं लगा। कल शाम के वेबिनार में भी आपने बोला कि अगर अपने इसके पास में आ जाए लोअर बैंड के पास अगर आज मिलता है तो हमको वो लेना है, लेकिन सर एक हाँ नहीं लोअर बैंड के पास आज वीकली के लोअर बैंड के पास, वीकली के लोअर बैंड के पास स्टॉप एंड लीवर्स टू सेल अबव बीडीपी है, अच्छा लेस देन बीडीपी है। नहीं वो सब तो आपने ऐसे बोला था कल ऐसे, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मींस ठीक है मैं तो निकल गई क्योंकि आप मेरे को थोड़ा नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड करने का आदत है, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी मींस जो जितना आप देंगे और जितना आप बोलेंगे उतना ही करना है और वही एकदम करेक्ट है और वही बराबर है। तो सर यही मुझे बोलना था कि जिसने भी ये ट्रेड किया वो हर ही और शी जो भी है और उसने ये पैटर्न रिवॉर्डिंग और वो है, मुझे आई वाज लिटिल डिस्टर्ब सर बिकॉज ट्रेंडिंग लेग टू बाय में है। आप बोलते हो कि जब तक आज का ड्रिफ्टिंग सेल लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा तब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होगा और सेलिंग में आएगा ही नहीं, तो मींस अपने को क्यों सेल करना है, वो गलत है ना सर, ऐसा मुझे लग रहा था। तो सर वो डिस्टर्बिंग था, वो शायद आपने अगर वो ठीक से मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे भी नहीं पता था, तो वो चीज ने डिस्टर्ब किया। आप जितना दे रहे हो और आप जितना सिखा रहे हो और जितना सीखने का कोशिश कर रहे हैं उल्टा पुल्टा इधर उधर जाके नहीं सीख रहे हैं, तो आपको लगाम पकड़ के रखो और मींस ऐसा मैसेजेस भी बहुत डिस्टर्ब करता है फिर। ठीक है, इसीलिए मैं कम भेजता हूँ मैसेज आजकल। नहीं सर, लेकिन एम आई रॉन्ग और मींस ऐसा मैंने कुछ अगर आपको मींस ऐसा बुरा लगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट बीपीसीएल में आप मेरे को बताइए अगर मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे सीखना है कि पैटर्न फेलियर किधर था, नहीं था पैटर्न फेलियर। वीकली में ट्रेंडिंग लेग टू बाय में चलता है तो आज का ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ के वो एस्टेब्लिश होगा तो ही वो सेलिंग में है ना सर, और या मैं कुछ गलत करती होंगी तो आप मुझे प्लीज सिखाइए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है हाँ तो इमीडिएटली तो सेलिंग, अगर मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं इमीडिएटली तो उसको सेल नहीं करती हूँ ना। गिव मी 1 मिनट। पैटर्न फेलियर का मतलब ये है कि ये डार्क ग्रीन में ही था, वेरिड बाय में था, आईसीआरसी रिट्रेस होकर हाई टाइम उसने फ्रेश सपोर्ट दिया, आईसीआरसी ओपन रिट्रेस एंड फ्रेश सपोर्ट देके वो स्टॉप एंड लीवर्स टू सेल हो गया, राइट, बराबर है हाँ। इज कॉल्ड पैटर्न फेलियर। सर वैलिड बाय में कल अगर अपन बात करते हैं कि लोअर बैंड के पास लेने का, तो सर मैंने सेल करना चाहिए था क्या जब भी मेरा स्टॉप लॉस 49 का हिट हो गया? फिर से सुनो, पैटर्न फेलियर का मतलब क्या, बाइंग का जजमेंट होने के बावजूद, रिट्रेस होकर बढ़ने के बावजूद, जी सर, टारगेट आए बगैर, जी सर, उसने स्टॉप एंड लीवर्स टू सेल किया, जी सर, विदाउट अचीविंग द टारगेट, जी सर, जी सर, जो ट्रेड सेटअप बाइंग के जजमेंट में था, बाइंग के सेटअप में था, जी सर, रिट्रेस हुआ था और टारगेट नहीं आया और उसने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, हाँ, उसका कहने का मतलब ये है ही इज ऑब्जर्विंग वेरी क्लोज, भाई जब भी टारगेट नहीं आता है या तो जब भी बाइंग का जजमेंट होने के बावजूद रिट्रेस होकर टारगेट आया बगैर जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, जी सर, इट इज नोन एज पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ, इसीलिए वो 449 से 416 आ गया। दैट इज व्हाट यू वांटेड टू कन्वे। सर अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं बेच सकती हूँ सर? नहीं,
आप उसको ऑब्जर्व करो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर करो। ओके सर, ओके सर, ओके सर, अभी अभी ध्यान में आ गया। हाँ हाँ सर, कमिंग पीरियड, ये तो ड्यूरिंग द पीरियड ही हो गया, जी सर, बट कमिंग पीरियड में भी it is not necessary that it will fall in the same week. It may करेक्ट fall in सर, coming weeks also, subsequent weeks also. जहां जी जहां सर, टारगेट आना था, टारगेट नहीं आया, कंडीशन 1 बाइंग के सेटअप में रहना चाहिए। हाँ कंडीशन 2 रिट्रेस होके बढ़ा, हाँ, कंडीशन 3 फिर भी टारगेट नहीं आया, ये तो जिसके हाथ जी में सर, माल होगा उसको पता चलेगा, एंड उसके बाद भी उसका स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। जी सर, जी सर, दैट इज कॉल्ड पैटर्न फेलियर। एज ओके पर सर, सिस्टम टारगेट आना था और नहीं आया, एंड पैटर्न फेल हो गई। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हर तरह से बाइंग का जजमेंट था और टारगेट ही नहीं आया। स्टॉप लॉस, ये सेकंड सेटअप है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, सेकंड सिनेरियो है। टारगेट अच्छा नहीं सर, आया और स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ, जी सर, जी दैट इज सर, आल्सो पैटर्न फेलियर। जी सर, बिकॉज 49 में मैं कल तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आई वाज, जब भी आज 20 आया तो वाज वेरी हैप्पी कि मैंने बोला अरे वाह बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत बहुत जल्दी अपने को समझ में आ गया कि ये और भी नीचे आएगा, लेकिन ये ये चीज बात का नहीं है बहुत कि बुरा स्टॉप लॉस लगा कि नहीं रखा तो क्या हाल होता है ना, वो भी समझ में आ गया ना, जी स्टॉप लॉस सर, तो रखना और लेकिन सिर्फ ये चीज का बहुत बुरा लगा कि ये पैटर्न मीन्स सेलिंग क्यों नहीं किया, 49 में सेलिंग करते थे तो मीन्स वो क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरा बाइंग में है और जब तक वैलिड सेल एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक क्योंकि सेलिंग मैंने नहीं उसके लिए करते कभी ट्रेन नहीं किया, मैंने उसके लिए कभी ट्रेन नहीं किया और कभी उसको एंकरेज नहीं किया, कभी शेयर नहीं किया, कभी सिखाया ही नहीं। हैं। तो सर अभी इतना अभी अभी जैसे स्टॉप लॉस सर ट्रिगर होता है निकल जाओ बस, दिस इज द थिंग। क्योंकि शिक्षा सिस्टम में स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। स्टॉप लॉस किसको बोलेंगे, फिर से कहता हूँ, एक बार मैंने एक दो दिन को बोलने की कोशिश भी की थी, फिर से समझाता हूँ यहाँ पे। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन स्टॉप लॉस का पेन कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस का पेन तब होना चाहिए जब स्टॉप लॉस ट्रिगर करके प्रोजेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड टारगेट आते हैं, और इस ऐसे स्टॉप लॉस का पेन नहीं होना चाहिए जो अपने को फर्दर लॉसेस से बचा लेता है। सर मुझे ऐसा सर आप बराबर हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं ना, अब हम ज्यादा लॉसेस से बचने के लिए रखते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मीन्स हमारे टारगेट्स वगैरह नहीं आते हैं तो स्टॉप लॉस जब भी ट्रिगर होता है दुख तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपने सिस्टम के हिसाब से तो मीन्स वो ये अगर दुख आप होना प्रॉपरली चाहिए, काम कर रहे हो दुख होना चाहिए जब स्टॉप लॉस ट्रिगर करके बाद में है ना टारगेट आए हो। तो सर लेकिन हम और वापस से दुख वैलिड है, सब कुछ अच्छा है तो मेरे को वापस बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना सर उसके अंदर काम करने के लिए, लेकिन मेरा दिमाग में वो होना चाहिए कि ये वैलिड है तो आई हैव टू, इट इज इन द बाइंग एंड आई हैव टू वर्क इन बाइंग। अगर इफ इट इज इन द बाइंग मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और मैं वापस सेलिंग में उसके अंदर चली जाती हूँ और फिर बाइंग करना है कि नहीं करना है, तो देन दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। जब तक नहीं आज नहीं, का वो नहीं निफ्टी साइड सीखना, ट्रेड नहीं नहीं होता सीखना, है छोड़ नहीं, दो नहीं सीखना उसको अपने को। बाइंग के हाँ ठीक सेटअप है में सर, सीलिंग एग्जैक्टली सर नहीं देखना है ना, नहीं, बाइंग के सेटअप में सीलिंग नहीं देखना। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक, आई होप यू, क्या बोल रहे हो? I said you. I hope that you like the story. Whatever you are giving is for everybody of us. आप सबको जानते हो, तो आप जो देते हो आपको पता है कि आपको कितना देना चाहिए, और वही प्रसाद है सर आपको पे। थैंक यू वेरी मच सर। भगवान कृष्ण के बारे में अगर आप कुछ भी बोलते हो ना तो स्टोरी नहीं है, वो सत्य है। ठीक है, हाँ सर ये तो सत्य ही है, हाँ हाँ ये तो लिखा हुआ है, यस सर, यस सर, नो स्टोरीज। थैंक यू सर। और मैं कहीं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आप सब में मैं बांटता रहूँ, देता रहूँ। वी आर ऑल जस्ट फ्रेंड्स। जो भी इस बाजार का गुरु बना है, जो भी इस मास्टर ऑफ मार्केट बना है, आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड मास्टर ऑफ मार्केट, और कोई इस बाजार का गुरु हो ही नहीं सकता।
बाजार है, बाजार सर्वोपरि है। तो आता है, टाइटल्स आते हैं, मार्केट एक्सपर्ट, कोई नहीं हो सकता मार्केट एक्सपर्ट, स्टूडेंट ऑफ द मार्केट हो सकते हैं। ये सारी बात में फिर से मैं रिवाइज कर, डॉक्टर रेड्डी हमने बात की ईयरली टाइम फ्रेम में, प्रीवियस ईयर में बाइंग के सेटअप में रह के एफसी 100% तक आकर एफसी 100% ट्रेड नहीं किया, तो काफी अच्छा वो बढ़ा है। और टूट के बढ़ा था, बाइंग के घर में ही रह के, वैलिड सेल में रह के टूट के बढ़ा था, तो आरसी 100% को भी उसने रेस्पेक्ट नहीं किया। ये दो बात हमने डॉक्टर रेड्डी से सीखी। तीसरी बात हमने डॉक्टर रेड्डी से ये सीखी कि जब भी रिट्रेस होके बढ़ता है, तो जहां से रिट्रेस हुआ था तो उसका नेक्स्ट लेवल तो एक बार आता है, खास करके अबनॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में 100% के ऊपर। समझ लो 100% ट्रेड कर लिया हो और 127.2 ट्रेड नहीं किया और मिनिमम रिट्रेसमेंट या मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, तो 161.8 तो आता है। 161.8 तक आकर वो रिट्रेस किया हो, मिनिमम रिट्रेसमेंट या मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, और फिर वहां से जब बढ़ता है तो 161.8 का नेक्स्ट लेवल 423.6 आता है। इन अदर वर्ड्स, रिट्रेस होके जब भी बाजार बढ़ता है तो उसका नेक्स्ट लेवल तो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरीज इतना ध्यान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर ये सब ध्यान रख सकते हैं, एक्टिव ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, 2-3-4 ट्रेड है तो रख सकते हैं। ये हिरेन बोलो। गुड इवनिंग सर, टोरेंट पावर डेली। एक सेकंड, मैं कुछ मैसेज में चला गया। श्योर सर। टोरेंट पावर डेली, सर इसमें एक ही क्वेरी है। आज इसने इसका क्लाइंबिंग बाय जो था वो आरसी 100% था जो ट्रेड नहीं किया, तो इसमें डबल ग्रीन स्टार आना चाहिए ना सर आज, बिकॉज 61.8 ट्रेड करके 100% ट्रेड नहीं किया है उसने। आरएमएसएल हायर खुल के बराबर है। आज डेटा अपलोड हो जाए तो एक बार वापस चेक कर लेना, और फिर भी अगर नहीं हुआ है तो विल गेट इट करेक्ट। चलेगा सर, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स इट, उतना ही था। हाँ मनीषा, मनीषा बोलिए जल्दी से प्लीज। प्रदीप बोलिए। Hello, sir. Can you hear me? Can you hear me, sir? Yes, very Okay. Sir, Devi's lab, please, daily. So I was just watching the recent high trading and what happens. Sir, on 14th of 14/7, sir, there's 2256, the recent high. It traded on 20th, and SNR to sell happens, sir. So recent high trades and SNR to sell happens. It should have gone to the low, no, 2177. I mean, that's the observation which I usually do. Recent high आके SNR to sell होता है, तो sir, उसका मतलब है उसको recent low तक आना है. Why did it stop at 2245, sir? Recent high trades and stop and use to sell occurs.
Hmm. This decline in price nearer to the recent low is correction sell or trending sell in this scenario, Correction sell. because according to trending leg, according to PCI, Yeah, this is it was buying. Yeah. It was a correction sell, and correction sell need not come up to 2177. Secondly, Okay. on 20th July, when stop and use to sell has occurred, Hmm. it was greater than BDP or less than BDP. Greater. So journey will be nearer Okay. to So WDP. Okay. Got it. Okay. Fine. Thank you, sir. And are you taking such trade that when recent high trades and stop and use to sell occurs, so sell projecting recent low? Yes, sir. You are taking such trades? Yes, sir. नहीं, ऐसा मत करो. If it is in selling judgment, Yeah, that's and what this mistake was. on the higher side, and stop and use to sell occurs, that too below BDP, then you sell, projecting even recent low will be traded on lower side. Otherwise, don't. Buying, selling का judgment तो चाहिए ना. Huh. Okay. I mean, I had done 2-3 times, it came correct, and this time I was wondering why it stopped here. So, okay, I did not blend it. Just try to know in which house it is, bull's house or bear's house. Okay, fine. Thank you. Mikesh bolo. Hello. Yes. Sir, with respect to stop and reverse to sell above BDP, and as you said, the buying should be there around WDP. But before it comes near to WDP, before that, if we get support in lower time frame, so there too we should buy, right? If See, it gets this opportunity has to be traded by reversal buy sell trader, right? One thing. okay. Sir, my query was with respect to the frame trade setups. In that, No. on retracement, No. Frame trade okay, setup, post-opening trade setup pages who are trading weekly, monthly, or like that, they should not try to buy on correction sale nearer to low WDP. okay. Oh, okay, fine, got it. Oh, over there only if it lower time support is there, then only we are buying. Yes, yes. Okay, okay. Because this opportunity, by the time it comes, week might have changed, Yeah, days might have changed. okay. Plus, it may reverse from 2241. It may reverse from 2211, and according stop loss also will keep extending. Right. And reversal buy sell trader, because they are trading consistently this opportunity with a belief system, with a confidence, with a conviction that low and WDP will not be traded on lower side when it is in bull's house. Right. And also they are projecting that stop and use to sell resistance 2337.90 will be traded on higher side. So they are trading for minimum 8 to 10% of gain. Right, right. So they can trade. But we, being active trader, वी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सिर्फ एक्टिव ट्रेडिंग ही करते हो, Right. वो ट्रेड सेटअप पेजेस से ही करते हो. They should Yeah, not yeah. attempt to do all these things. नहीं तो you know ये temperament नहीं रहेगा, because this 2211 stop loss will keep extending sometimes. Yes, yes, And it keeps, lot yes, of lot of patience also. yes, sir. Got it, got it. But मैं चाहता हूँ मुकेश
आज Yeah. आपने पार्टिसिपेट किया इसलिए कह रहा हूँ। अब अपने पास रिवर्सल का पूरा कॉलम्स अवेलेबल है, occurrences अवेलेबल है। Yeah. Just observe, it is only one scenario when it, according to trending leg buy is there, stop and use to sell above BDP occurs, and when approaches WDP, how it behaves, how many times it is managing to trade the WDP on lower side, and how many times it is managing to trade the resistance on higher side, and from there again I'm talking about occurrence price. This 2, 3, 4 is the occurrence price. क्या वहां से 5% मिलता है? So from 2245 to 2347 is 5% or even more. Right. From 2347 again it is another 5%. तो 10% का ट्रेड मिलता है। तो यू बीइंग विद फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, प्लीज ये आप अडॉप्ट करना चालू करो, स्टडी करना चालू करो। स्टडी Yes, करोगे sir. ना तो टेम्परामेंट आ जाएगा, कोई अलग से कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। Got it, sir. Got it. टेम्परामेंट कैसे आएगा? स्टडी करने से आएगा टेम्परामेंट। True, true. Yeah. ठीक है ना? Oh, okay, sir. Thank you. एक्टिव ट्रेडिंग चालू रखो, 38.2% एक्टिव ट्रेडिंग, 61.8% पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाओ। प्रदीप बोलो। यस सर। सर बीपीसीएल में क्वेरी था, वीकली ट्रेड सेटअप, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप। वो वापस बीपीसीएल में जाते हो गया ना सर क्योंकि एक्चुअली ये मैंने एक ट्रेड लिया था और यस्टरडे, तो आज इसमें लॉस मैंने बुक किया, तो इसलिए जानना था। वीक, अच्छा ठीक है। बोलो। आज के वीक में प्लान खोलिए। हाँ, तो इसमें ये नॉकडाउन इन आरसी वाला ट्रेड था एंड 449.65 वाज द सपोर्ट, बट इस डेली में 28th को उसने एसएनआर टू बाय किया। सॉरी, एसएनआर टू सेल ग्रेटर देन बीडीपी किया। एसएनआर टू बाइंग सपोर्ट ही नहीं दिया उसने पूरे वीक में एक बार भी। एसएनआर टू सेल ग्रेटर देन बीडीपी किया। तो डब्ल्यूडीपी था 452। नहीं यार, तुम लोग ना गलत करते हो। दैट इज स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी। जो सेटअप है वो कौन सा सेटअप है? रिवर्सल बाय सेल का पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप है ना। आप या तो एक्टिव ट्रेडिंग की बात करो या पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करो, दोनों बात मत करो। यस ट्रेडिंग यस, तो से एक ही करो, दोनों मत करो। बिल्कुल सर। आज अभी मेरी क्वेरी के जस्ट पहले ही आपने आंसर दिया उसका, कि वो सोल्यूशन मुझे मिल गया, तो वही आंसर है ना कि आई शुड नॉट लुक एट। बीपीसीएल में हमने कल भी बात की थी, आज भी कह रहा हूँ, रोज कहता हूँ कि एक्टिव ट्रेडर्स, वीकली ट्रेडर्स को एक बात सिर्फ ध्यान में रखनी है, मैं वही बाइंग करूंगा जो रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट देता है। yes. वही सेलिंग करूंगा जो रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देता है। बाकी बाजार में जो बढ़ता है बढ़े, जो टूटता है टूटे, मुझे सब अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। मेरा ध्यान मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए कि मेरे 10 में से 8 ट्रेड 9 ट्रेड अगर मुझे सक्सेसफुल चाहिए, कितने? 8 9 10 में से 8 9। और मैं कोई नए आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नए स्टूडेंट से, कोई न्यू ज्वाइनर हो तो उसके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता हूँ। यू आर विद शिक्षा फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो आप खुद ही बोलो कि बाइंग के सेटअप में हो, रिट्रेस हुआ हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला हो, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस कितने और टारगेट आने के चांस कितने? टू योर एक्सपीरियंस। सर मेरे एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है इसमें, क्योंकि मैं एलटीएफ सपोर्ट से लेता ही नहीं था। अभी मैं रिसेंटली स्टार्ट किया, ये जब ही से आपने ये जो 5 कॉलम करके दिए ना एलटीएफ वाला मैट्रिक बना के, उसके बाद से मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये चीज मैंने ये कल के दिन के मैंने छूट किया कि मैंने किया नहीं देखते थे। हाँ, तो मैं वो स्टॉप लॉस के हिसाब से ले लेता था, वीकली के स्टॉप लॉस से। बट ऐसा कभी सिखाया हमने? नहीं सिखाया आपने।
बट आपने सिखाया कि ये करते हो तो करते ही रहो, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये सब है ना तेजस जो है ना, ये जो तेजस जैसे ट्रेडर है ना, जो 25-30 ट्रेड हमेशा ओपन रखते हैं, वो करते हैं, जो नफा हुआ नुकसान हुआ, ना नफा उसको टच करता है ना नुकसान उसको टच करता है, फिर वापस he'll be into the other trade, neither profit influences him nor losses influences him। उस टाइप के लोगों के लिए यार, अपने को तो हफ्ते में 4-5 ट्रेड करते हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी की करो ना। बिल्कुल आप अग्रेसिव ट्रेडर हो क्या? नहीं। तेजस अग्रेसिव ट्रेडर है, वो बोलेगा तो मैं उसको हाँ बोलूंगा, ठीक है कर भाई। आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, मुझे मालूम है। हाँ तो फिर क्यों नो इस डिसिप्लिन से इसमें जो आता है वही करें। yes yes, so I just wanted to confirm that that was the mistake, okay, I did, and you also answered just before my query the same thing, ठीक है। मेरा कभी कभार है ना जवाब पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट डिफर हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ हद तक मालूम है कि किसकी कितनी मेंटल कॉम्पिटेंसी है, कि कौन कितना ट्रेड ले सकता है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आपके साथ में 6 दिन रहता हूँ ना, तो मैं पूरा परख लेता हूँ सबको। हम्म, समझ रहे हो ना? हाँ अपने को बिल्कुल नहीं करना है ना, ऐसा क्यों करना चाहिए अपने को? मुझे 10 में से 8 ट्रेड सक्सेसफुल चाहिए, तो होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे इतना बोलो। आपका जो भी शिक्षा का एक्सपीरियंस है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो ही बाय करूंगा, लोअर हाँ टाइम फ्रेम में बिल्कुल रजिस्टर तो ही सेल करूंगा। तो आप बोलो कि कितने ट्रेड सक्सेसफुल होंगे? यस, वो तो है, अगर बढ़ना है तो उसको एलटीएफ सपोर्ट दे के ही बढ़ना है, और कोई हाँ, तो चारा ही कितना नहीं। ट्रेड सक्सेसफुल होगा इतने ही पूछ रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से। हाँ आई मीन सो मोर देन फॉर 60 एक्सपीरियंस 70, आप सक्सेस, मोर देन मैं जो 60 कह रहा 70% हूँ आई कैन 8 से। 8 बार 9 बार सक्सेसफुल होगा, वो सही है कि गलत है? सर आई मीन 8 9 तो, क्योंकि मिक्स मैं तो ऐसे अलग अलग से काउंट नहीं किया, बट मोर देन 60 70% होगा, क्योंकि आई विदाउट सपोर्ट भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यस। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अच्छा सबसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि भाई मैं कैसे समझाऊं ये बात को। बाइंग के ऑप्टेड ट्रेड सेटअप में हो, वैलिड बाई हो, और लो टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, तो आपको क्या लगता है कि कितना स्ट्राइक रेट होना चाहिए? हम्म, हाँ क्या सर लगता है? आपने जो ट्रेडिंग किया वो छोड़ दो, अगर हाँ सिस्टम के हिसाब से अगर अपन ट्रेडिंग करते हैं, सिस्टम के हिसाब से ही क्लियर कट हम ट्रेडिंग करते हैं कि बाइंग के जजमेंट में है, वैलिड बाई है, रिट्रेस होता है, फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, तो मैं बाइंग करता हूँ, हम्म, तो स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए प्रदीप आपके हिसाब से? अगर ऐसे ही करे तो सिस्टम का स्ट्राइक रेट बोल रहा हूँ। आई मीन मोर देन 70% 75% होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जब भी यहाँ से 30% में जब है ना, आज के बाद चाहे आपका ट्रेड है नहीं है प्रदीप, स्टडी हम्म, करने के लिए रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, और अगर उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो, तो प्लीज यहाँ पे डिस्कस करना ना। बिल्कुल मालूम है कि आप सिस्टम, आप ट्रेड के अलावा ट्रेड नहीं है तो भी बहुत अच्छे से आप स्टडी करते हो, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्म, ठीक है सर। क्योंकि मैं 8 बार 9 बार बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि वे कितनी बार होता है सही। ठीक है आपके अकाउंट में हमेशा 25-50 शेयर तो ले लो, और फिर टेस्ट करो, फिर देखो कि आपके अकाउंट में कितने नंबर ऑफ ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। कल से 10 हम्म ट्रेड लो, और एवरी 10 ट्रेड यहाँ पे रिपोर्ट करो। हम्म, मतलब आई गॉट योर पॉइंट। बिकॉज यू नेवर ऑब्जर्व नो, यू नेवर चेक नो, इसलिए अंदाज से तुम बोल रहे हो 70%, कुछ भी बोल रहे हो सकता है वो 50% भी नहीं हो सकता है वो 90% भी हो, 80% भी हो। यस और नो? यस ट्रू, कल से चालू करो, जो भी बिल्कुल समझ में आता है, रिट्रेस हो बाइंग के जजमेंट में है, वैलिड बाई है, रिट्रेस हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, ले लो 50 शेयर, बेच दो 50 शेयर, देखते हैं क्या होता है। हम्म 10-10 ट्रेड करके यहाँ पे रिपोर्ट करना चालू करो। यस बाजार में जो ठीक है होता है ना वो होने दो यार,
अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अपना अपना स्ट्राइक रेट कम से कम 80% होना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। वो लो सपोर्ट लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस देख के करोगे, रिट्रेसमेंट प्लस लो टाइम फ्रेम सपोर्ट, या तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं देखना है तो स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP, ये करो। अब तेजस से पूछते हैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP में उसने अच्छी मास्टरी ली है, मैं आपको म्यूट करता हूँ, उनको डायरेक्ट पूछते हैं ना कि भाई क्या स्ट्राइक रेट है उनका। एक्चुअली यही तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत विचार में ना 15-20 मिनट ये सब बात करनी चाहिए। बोलो तेजस, यस की सर। जजमेंट बाय अबव WDP आप हमेशा करते हो, अभी आपने बोला मुझे सर बाइंग के जजमेंट में लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस टू फ्रेश रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अबव WDP अभी तक का 100% स्ट्राइक रेट है सर, अभी तक। खाली एक ट्रेड मेरा फेल जो हुआ है, जो मुझे आपसे डिस्कस करना था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसमें मुझे पता नहीं है क्या रीजन है, लेकिन बाकी के मेरे कम से कम 8 ट्रेड अभी तक सक्सेसफुल गए उसके बाद में। वेरी गुड, ठीक है ना, करते रहो, ऐसे करते रहो यार, थोड़ा सिस्टम में रहो, सिस्टम के जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिसिप्लिन है वो फॉलो करो। सीधा स्टॉप लॉस के पास मिलता है इसलिए ले लिया, स्टॉप लॉस के पास मिलता है इसके लिए ले लिया, स्टॉप लॉस के पास मिलता है इसके लिए ले लिया, ऐसा काम मत करो। भले थोड़ा महंगा लेंगे लेकिन ठीक है ना, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो नहीं समझा पा रहा हूँ। स्टॉप लॉस के पास स्टॉप लॉस छोटा है करके काम मत करो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये कौन करता है मालूम है? स्टॉप लॉस के नजदीक मिलता है तो ले लो, स्टॉप लॉस के नजदीक मिलता है तो ले लो। इससे एक और साइकोलॉजी क्या होती है मालूम है? स्टॉप लॉस जब दूर होता है ना तो बाइंग ही नहीं होती है और वो ट्रेड मिस हो जाता है। और स्टॉप लॉस नजदीक है तो ही बाई करो, स्टॉप लॉस नजदीक है तो ही बाई करो। रिस्क रिटर्न रेशियो देखो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखो। ये सब कौन करता है? जिसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, वो है ना हमेशा स्टॉप लॉस के पास ही लेता है। स्टॉप लॉस के नजदीक मिला तो ही बाइंग करता है, स्टॉप लॉस के नजदीक बिका तो ही सेलिंग करता है, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे बहुत सब मैं कुछ एनालिस्टों को जानता हूँ, वो ऐसा ही करते हैं, स्टॉप लॉस के पास बाइंग करते हैं। मैं बोलता क्यों भाई? दे आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू द स्टॉप लॉस देन देयर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। What is more important? Trading strategy. What is more important? Buying judgment. What is more important? Selling judgment, not the stop loss. Stop loss तो हम इसलिए रख रहे हैं कि मेरा ट्रेड अनफेवर हो तो मुझे कहाँ स्क्वेयर ऑफ करना है मुझे पता होना चाहिए। आई शुड नो वेयर आई हैव टू एग्जिट। और स्टॉप लॉस हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है, तो आई कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस वन बाय वन, ऊपर 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 हम स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं? ट्रेल कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टॉप लॉस सीख रहे हैं। ये नजदीक के पास मिला इसलिए बाई कर लिया, वो दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी एट ऑल। फिर वो 70% से कम ही रहेगा स्ट्राइक रेट। बिना लो टाइम फ्रेम से, बिना लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला तो भी मैं बाइंग करता हूँ उसका। अगर स्ट्राइक रेट 70% है और ही इज मास्टर इन स्टडिंग, हाँ, वन ट्रेड को स्क्रूटिनाइज करता है, तो आप सोचो कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने पर अगर हम बाइंग करते रहेंगे तो व्हाट शुड बी द स्ट्राइक रेट? हाँ कमलेश भाई। જય શ્રી કૃષ્ણ સર. जय श्री कृष्ण। સર થોડીક ડિફરન્ટ ક્વેરી છે. બેંક બોલો નિફ્ટી બોલો। ડબલ ગ્રીન સ્ટાર છે, રાર એસ પર રાર.
वो सीरीज जस्टिफाई होकर यहाँ से चल रहा है। मुझे याद है इन दिनों में आपने 19,300 के स्टॉप लॉस से 22,000 की बात की थी। सीरीज अकर और इनएक्टिव ये ट्रेड सेटअप हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। सर वही क्वेरी है। वो क्वेरी अलग से बात करेंगे ना। नहीं सर कोई बात नहीं, लेकिन खाली जस्टिफाई न हो कि इनएक्टिव हुआ है तो प्रीवियस जस्टिफाई का मास्टर हाई और किलो आ सकता है। ये डबल स्टार है, फिर भी डबल ग्रीन स्टार है। मैंने वैसा स्टडी नहीं किया है, देखते हैं ना। गोल्ड सीरीज अक्कर हो, जस्टिफाई हो और इनएक्टिव हो तो किलो के पास से अगर रिवर्स होता है तो अपन यूज्ड टू बाय अबव WDP या फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP तो हम बाइंग करते हैं। वी एक्टिव हो तो भी हम बाइंग करते हैं। ये जो अकरेंस इनएक्टिव है ये हमने कभी सीखा नहीं है, न शेयर किया है। लेट अस ड्रॉप दिस क्वेरी हियर नो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अलग से बात कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम सर, लेकिन ओके नो प्रॉब्लम। तो मंथली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ और वीकली में स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हुआ था और मंथली में स्टॉप एंड ड्यूज टू सेल हुआ है। ICRC बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड किया, मैक्सिमम रिट्रेस हुआ और स्टॉप एंड ड्यूज टू सेल हो गया क्योंकि बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड किया, इसलिए स्टॉप एंड ड्यूज टू सेल हुआ। फिर वापस रिट्रेस हुआ डार्क ग्रीन में। एक मिनट, स्टॉप एंड ड्यूज टू सेल होकर फिर वो रिट्रेस हुआ क्योंकि डार्क ग्रीन था, इसके लिए वो बेल आउट करने आया। हालांकि डार्क ग्रीन जस्ट अक्कर ही हुआ है और बेल आउट होके स्टॉप एंड ड्यूज टू सेलिंग RC है अबव BDP, बराबर ना। हाँ सर, लेकिन कैचिंग द फॉलिंग नाइफ और कल लास्ट डे है, फिर पोस्ट क्लोजिंग टोन आ जाएगा। सॉरी सर, सॉरी, चलो छोड़ो। स्टॉप एंड ड्यूज टू सेलिंग RC और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया है। बाइंग के सेटअप में है, इसके लिए सेलिंग की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। सर कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है सर बाइंग के सेटअप में। हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होता तो बात अलग है। सिर्फ कैचिंग द फॉलिंग नाइफ देखते हैं, रुको। वीकली में RMC लोअर है, स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय इन FC अबव WDP है, अबव WDP यू नो। तो इस सजेस्ट बाइंग किसी का, और बाइंग डार्क ग्रीन ही चल रहा था। हालांकि प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन नहीं है बट है तो बुल के घर में ही, तो हम प्रीफर यही करते हैं कि प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन हो। बट हियर RMC लोअर ओपन्स एंड स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय इन FC अबव WDP है और कल लास्ट दिन है, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो व्हाई डोंट वी यहाँ से 22,344 आके 22,162 जब ये रिट्रेस हुआ, मिनिमम रिट्रेसमेंट, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता हो तो बाइंग करना चाहिए, प्रोजेक्टिंग RC 23.6%। रेजिस्टेंस मिल गया लोअर टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ मैं। में तो रेजिस्टेंस नहीं मिला ना, सॉरी 30 तारीख को। वीकली में स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय अबव WDP है, ये हमने देखा। नॉक इन RC है, ये भी हमने देखा, इसलिए RC 23.6 का प्रोजेक्टेड टारगेट है, ये हमने देखा। और डेली में आज रेजिस्टेंस मिला हो 30 तारीख को, रेजिस्टेंस मिल के FC 100% ट्रेड किया गया, 100% ट्रेड किया 10 पॉइंट से। हाँ सर, कर दिया। किया हुआ नहीं मानेंगे उसको। क्यों? वीकली में बाइंग है ना, इसके लिए।
वीकली में बाइंग है ना, स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP, वीकली में स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP है, तो ये डिबेट की बात है, इसको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज वीकली में स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP है, एंड वी शुड एक्सपेक्ट टुमारो टारगेट ऑफ RC 23.6% अगर हम कल की बात करते हैं तो। सर खाली डेली में 20 तारीख देख लीजिए। अब कल का डेली प्लान भी देख लेते हैं, और आप 20 तारीख खाली 7 जुलाई देख लीजिए ना प्लीज, 7 जुलाई। तो कटिंग द फ्लाइंग काइट भी है, ICFC लोअर गैप along with cutting the flying kite खुल जाता है, तो अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, चलो इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP है, तो वो जब तक वो सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है उतना मुश्किल होगा। एंड 7 जुलाई का प्लान stop and use 22,937, SLR to buy sell 22,937, 22,937, और नेक्स्ट लेवल 980, 23,073, ये ट्रेड करके ये ट्रेड किया ही नहीं, this one is not traded on higher side according to TCS PCR। अच्छा 7 जुलाई का प्लान देखने को बोल रहे हो? हाँ, उसमें स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल दोनों है, उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ही ट्रेड नहीं कर पाया, तो वो सपोर्ट ट्रेड नहीं कर देगा। स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस तक आया, उसने वो रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं किया, और तो सपोर्ट ड्रिफ्टिंग सेल, दिन का ड्रिफ्टिंग सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाय का 21,947 है। नहीं सर, नहीं, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी 21,947 ही है ना सपोर्ट? हाँ जी जी जी, तो 21,947 जो सपोर्ट था ट्रेड हो गया सर, ट्रेड हो गया ना, आपने बोला वैसे, वहां से रिवर्स हुआ, ऊपर नहीं गया तो नीचे के लेवल उसने कभी ट्रेड कर लिया, खत्म, और ट्रेड करके फिर वो वापस आया है ऊपर, एंड अकॉर्डिंग टू रिवर्सल अगर उसको देखना हो स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल को, जैसे हमने लोअर टाइम फ्रेम टोन देखा, तो वीकली के हिसाब से स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP है, इसलिए बाइंग ही है, और अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल हम देखें तो ये 16 जून देख लीजिए सर, 16 जून 23,328 का रेजिस्टेंस है, और 23,328 तक ही आया, और 22,143 ड्रिफ्टिंग सेल, तो उसने 14 जुलाई को ट्रेड करके वापस 23,328 तक रेजिस्टेंस को मिलके, एंड फिर वो इस टाइम कम बिलो 21,027, लेकिन कल ऐसा सब नहीं होगा, 623,266 है कल का LCP टू बाई, 23,822, 21,329 रिवर्सल बाई सेलिंग में है, लेकिन हम सिर्फ कल की बात कर रहे हो तो कल एक दिन के लिए है ना, वी शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड नॉट सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। हाँ, लेकिन 16 जून एक बार देख लेंगे सर, एक मिनट प्लीज, डेली में 16 जून यहाँ पे तो हमने बात की थी ना उस दिन, 19,354 के स्टॉप लॉस से बाइंग है। हाँ हाँ हाँ, वापिस वहीं तक नहीं आ जाएगा क्या 19,500? आप कल की बात पूछ रहे हो कि आने वाले दिनों की बात पूछ रहे हो? मैंने पहले ही बोल दिया सर, अभी वो कल मंथ का आखिरी दिन है, तो फिर पोस्ट क्लोजिंग टोन हो जाएगा, कल एक दिन बात है ना, तो कल कम से कम लोअर बैंड ट्रेड नहीं करे तब तक तो सेलिंग की बात मत करो, तब तक तो वीकली में WDP ग्रेटर देन WDP है तो हम बाइंग की बात करें ना, प्रिंसिपली सिस्टम के हिसाब से, फिर टूटना है तो टूटेगा। नहीं सर, सिस्टम के हिसाब से भी डार्क ग्रीन नहीं है सर निफ्टी, भले लास्ट वीक भी नहीं और करंट वीक भी नहीं है,
तो बलन वो नहीं बोल सकते सर। और बिलो बीडीपी वापिस स्टॉप एंड सेल भी हो सकता है क्योंकि मंथली उसका हायर टाइम फ्रेम तो सेल है। 1 मिनट सर लंबा हुआ तो छोड़ देना प्लीज, अगर लंबा हो रहा है तो छोड़ दीजिए प्लीज। 9:35 हो गया सर। नहीं एक्चुअली कुछ फायर की बात है। 1 सेकंड ना, मुझे देना, एक मिनट देना, क्या हुआ मैं समझ के आता हूँ। यू नो नेक्स्ट डोर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ बस्ट हुआ है, देयर इज ए फायर, और हमारे घर में भी बहुत धुआं हो गया। जस्ट नाउ मुझे भी ख्याल आया कि भाई सिटिंग इन बेड्स। तो कमलेश भाई अपन ये अलग से डिस्कस करते हैं। लेट मी सी इफ दे नीड मी और सम हेल्प दे नीड मी। तो 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद सिचुएशन देख के मैं आपसे बात करता हूँ वापस, राइट। बट यहाँ पे बहुत क्लियर वीकली में यहाँ हियर नॉक इन आरसी है। I know it is not varied by, I know it is not dark green, लेकिन वीकली में जो हम बात कर रहे हैं कि स्टॉप एंड टू बाय इन एफसी वो WDP हुआ है 22,344 और 643 किए बगैर ये एक बार रिट्रेस हुआ है 22,162 तक। और कल डेली में एक सपोर्ट मिलता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हमको बाइंग करना चाहिए। प्रोजेक्टिंग आरसी 23.6%। सर धुआं हो रहा है। लव यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल, रिस्पेक्ट यू। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल। प्लीज हैव अ नाइस डे।